Hello, good morning everyone. Chalo, welcome you all in the topic trigonometry again. So first of all, before formally, I would like to just tell you the questions which I had asked you to solve yesterday. There was a trick in the questions, so let us complete both the questions one by one. पहले C complete करते हैं, उसके बाद D complete करते हैं. Quickly, we will start the question C with LHS as equals to tan square theta plus cot square theta plus 2. Now here the fact is we convert this into sine and cos in case like sine square theta and all upon cos square theta plus cos square theta upon sine square theta, then you may not able to solve this question. That is first and foremost thing one should understand. You can solve rather, but would be bit difficult. So what is another way here I have to use? Somewhere I think we can work like tan square as and cot square as formulae. These are the difficult formula as we said. Tan square theta is equals to sec square theta minus 1, right? And cot square theta is equals to cosec square theta minus 1. Okay? So this is how we have the formula. I'll just put that tan square as sec square theta minus 1 plus cot square as cosec square theta minus 1 and plus 2. Now you will ask me, how will you understand that what I have to use here? So that is that comes with the practice. That means you will make mistake and you will learn. Okay, so only then this kind of a topic will be worked out. So remember that practicing, trying the question is extremely important in this topic. So self understanding and self practice is very much required here. Okay, experiment करना बहुत ज़रूरी है. So anyway, 1 minus 1 get cancelled and 2 also get cancelled. So I get here as equal to sec square theta plus cosec square theta. Now here normally we feel the question is wrong because look at this, it's almost we have received, but यहाँ पे multiplication है and over here is addition. So here we feel that it's a wrong question. And there is a problem with the trigonometry. It is not incorrect. You can convert this into this. So let us see what can I do after this. After this I'll convert this into sine and cos. Okay? And now I'll cross multiply. Can I? So sine square theta plus cos square theta upon the product of this sine square theta into cos square theta. So what do I get? Sine square theta plus cos square theta is of course 1 upon sine square theta into cos square theta. So this is going to be rather 1 upon sine square theta into 1 upon cos square theta, which is sec square theta into cosec square theta. And that is your RHS. हो गया आपका काम. Simple है, बहुत simple है, कुछ ज़्यादा difficult नहीं है. Come on, you can try it yourself. I won't keep this because you can take easily a screenshot and check that again. So that's the reason I quickly just erase it and go for the next one. LHS. LHS is nothing but this is the way sec square theta plus cosec square theta. Now as we know, what we can do here, convert this into tan and cot as we know, because I wanted to shift that or convert that as a tan and cot. If I do that, then also I can get the answer. Sec square theta is 1 plus tan square theta plus cosec square theta is 1 plus cot square theta. So we get here as 2 plus tan square theta plus cot square theta, which is the C question जैसे C में था, right? है ना? But यहाँ पे confusion है. Now how will you convert this into मतलब this? Now that becomes difficult. So what can I do here then? See, one thing you need to remember, that whatever is RHS, it has got no square root sign. So that means the square root sign we have to cancel. And how can I cancel the square root sign? So this should be the perfect square. ये जो दिख रहा है, this should be the perfect square. ठीक है, and it is a perfect square. The only thing is that you may be not able to understand. But ठीक है, anyway, I'm not following this process anyhow. I'm actually going to solve in a different manner. Instead of converting this into directly tan and cot, I would try for converting into sine and cos.
ठीक है. Normally I have seen student directly cancelling this square and square root sign, which is not getting cancelled because there is a plus sign in between, this addition of it. ठीक है ना. So the square and square root sign over here in this step itself, so it won't get cancelled, remember that. तो I can cross multiply, I get sin square थीटा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इसलिए मैंने सब कुछ एक टाइप में लिया हुआ है, मतलब एवरीथिंग कवर्स इन द सेम टाइप, सो दैट first question, the previous question has got linked with the next question, so that's the reason we are doing in this manner. So I get 1 upon sin square theta into cos square theta, which can be written as cosec square theta into sec square theta, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, root of sec square theta into cosec square theta, and that is equals to sec theta into cosec theta. रूट कैंसिल हो जाता है ना यहाँ पे, because it's a product sign, into sign. But what I understand here is, this is something which I got it is not equal to RHS. This is a kind of a sum where only LHS solving is not enough. I will try for RHS as well. That means I will simplify RHS plus cot x. x था यहाँ पे, मैंने मिस्टेक थीटा लिया हुआ है, प्लीज कंसिडर दिस एज x. So this can be sin x upon cos x plus cos x upon sin x. Cross multiply sin square x plus cos square x divided by sin x cos x. Sin square x plus cos square x is 1 upon sin x cos x, and which is equal to sec x into cosec x. So this gives me LHS is equals to RHS. So you can easily understand LHS also is simplified to this and RHS is also simplified to this. So this gives me LHS is equals to RHS. Therefore LHS is equals to RHS. So this is the way how we can prove this. So simply see, till this time we used to get one side of the equation and that we reduce to the other side of the equation, but here is the question where both the sides of the equation we simplified to get a same answer. So this even is possible to get it. Anyway, I just hope you understood the concept. I wanted you to try. I did not expect you to solve all the questions because I know it's not that possible right now at this stage. So it's okay, good thing that you tried. Many of you tried and you did not get. It's a very good thing. I am just expecting the same thing from you, that you should practice it all by yourself. Now the next type of question that what we have got right now in front of us, it is called as conjugate multiplication. Kagare. All this type you get nothing but conjugate multiplication. What is conjugate multiplication? Let's understand that first. So I'll just erase everything and understand the very first question. So while solving the question, you will realize it, or you will understand it. We have done this in your previous grades of your 9th standard, but we are going to use that concept in the trigonometry now. This is very clear. Sec minus tan, I have to prove that is equal to sec plus tan. How it is possible, isn't it? It seems to be like impossible, है ना? But in trigonometry nothing is impossible, keep in mind. तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करेंगे, रैशनलाइज जैसे हम करते थे लास्ट ईयर वैसे ही यहाँ पे करेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, and numerator also will multiply by sec theta plus tan theta. It's a new type of sum. All these type questions in this particular question number 6 we have got also the same category of conjugate multiplication. So now try to understand, देख लो, this is called as a conjugate of this particular one. ओके ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन. तो न्यूमरेटर 1 इंटू सेक थीटा प्लस tan theta विल बी सेक थीटा प्लस tan theta. Sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta, sec square theta minus tan square theta, sec square theta minus tan square theta. And what is that equals to 1? I hope you remember that. Sec theta plus tan theta upon 1 हो जाएगा, which is sec square theta minus tan square theta. Finished. That's it. I got your RHS. बहुत सिंपल है, बस ये पता होना चाहिए कि किस कहाँ पे कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली हमें ऐसे लगता है LHS साइन थीटा और साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स. अब इसको देखने के बाद ऐसे क्लियरली कोई भी बोल सकता है कि अरे इसमें तो
मतलब समझ में नहीं आता कि कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है. ओके, नाउ दैट हाउ टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट पेयर और कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस, दैट वी विल डिस्कस इन शॉर्ट टाइम, नॉट इन दिस क्लास बट इन रेगुलर रिविजन आई विल बी डिस्कसिंग कि विच क्वेश्चन कैन बी कंसिडर एज ए कॉन्जुगेट. यहाँ पे तो पता है मुझे कि सारे कॉन्जुगेट क्या हैं. तो चलो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका. डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है, एंड न्यूमरेटर भी होता है 1 प्लस कॉस एक्स, है ना. दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देख लो. तो ऊपर क्या आएगा, साइन एक्स. अभी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, अगर कोई ज़रूरत नहीं है या फिर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो नेवर मल्टीप्लाई. देखो नीचे क्या गई, हियर वी गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज़ अ फॉर्मूला, सो दैट्स रीजन आई एम मल्टीप्लाइंग इट. ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. तो स्क्वायर एंड साइन गेट कैंसिल, आई एम गेटिंग 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. ये क्लियर हो गया. अभी नाउ आई हैव टू गेट दिस वन, नॉट दिस व्हाट इज देयर. तो क्या करेंगे इसको, हाउ कैन आई गेट लाइक डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू हियर. इट्स सिंपल दैट यू हैव टू विजुअलाइज. इसको मुझे सेपरेट करना है. देखो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन एक्स, बराबर है ना. इससे पहले भी बोला था मैंने, 5/3 प्लस 7/3 को हम लोग लिखते हैं 5 प्लस 7/3 लिखते हैं, राइट. तो मैं इससे ये उल्टा उल्टा कर रहा हूँ मैं. ओके, सेपरेटिंग द फ्रैक्शंस. 1 अपॉन साइन एक्स क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन एक्स क्या आ जाएगा, कॉट एक्स. ये जब तक आपके फॉर्मूले क्लियरली समझ में नहीं आते, आपको क्लियरली यूज़ नहीं करते आप लोग, तब तक ये दिखना नहीं समझ में आएगा आपको. ये जो ट्रिक है ये समझ में नहीं आएंगे. तो इसीलिए व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू इज रिमेंबर द फॉर्मूले एवरी टाइम. फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज आई एम टेलिंग यू, फॉर्मूले रिमेंबरिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर ईच फॉर्मूला प्रॉपरली. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेम है, कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करना है. बट नाउ हियर व्हेन इट कम्स टू pair on the both the numerator and denominator, then there is some issue. So I'll tell you what is the issue. Here is LHS is equals to 1 minus sin x sin theta upon 1 plus sin theta. Now in this case let us understand that I need to multiply by conjugate of denominator. There can be possibility that there can be conjugate of numerator as well. Now let me tell you, both are correct in case of the question. So if you multiply by 1 minus sin x to the denominator, sin theta and 1 minus sin theta to the numerator, okay, then it is conjugate of denominator. And if you multiply by plus both the side, then it will be conjugate of numerator. ठीक है. So this comes with the practice, or you have to try both. Okay, but 90% of the time it will be conjugate of denominator only, not of numerator. ठीक है, तो हम लोग डिनोमिनेटर से ही शुरू करेंगे. तो 1 माइनस साइन थीटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. आई विल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा द न्यूमरेटर एज वेल. तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती है, वो मैं गलतियाँ सुधारता हूँ, डोंट वरी. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है ये. न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई इट और एक्सपांड इट. ठीक है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि इन द RHS देर इज नो square root sign. That means the square root sign of the numerator, square root sign of the LHS also should get cancelled. To cancel the square root sign, there should be square of the term. And here we are already getting 1 minus sin x the whole sin theta the whole square as a square of a particular term. You can check that. And the square root is getting cancelled. So that's it. So that's what we are expecting here, that you should understand. Instead of expanding, you have to actually write it as a bracket square. ठीक है. तो इसके बाद भी एक गलती करते हैं कि डायरेक्टली ये कैंसिल कर देते हैं एंड 1 माइनस साइन थीटा लिखते हैं अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं. अब बताओ ये करेक्ट है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूट साइन सिर्फ न्यूमरेटर का चला गया, डिनोमिनेटर का कहाँ चला है. तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करता है. तो यहाँ मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल भी. चलो देखते हैं फिर करना क्या है. अरे आइडेंटिटी देखो, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन
नीचे एक आइडेंटिटी दिख रही है आपको, नीचे एक आइडेंटिटी है, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। अभी दोनों को परफेक्ट स्क्वायर है तो इट कैन बी इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना है ये आप डिसाइड करो, मुझे नहीं पता, यू डिसाइड एंड गिव मी द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करोगे, ये भी आप लोग खुद से करो, इजी है, बहुत सिंपल है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजीली आ जाएगा आपको। तो डी भी कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर ही है, जैसे इसमें क्या था, इसमें क्या था, वैसे ही इसमें भी करना है, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर यूज़ करो, आई थिंक यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन और कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ठीक है, टेक्स्ट बुक में कैसा है, ये एक क्वेश्चन है, एक एक मुझे लगता है ये कुछ डी वाला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, हो गया काम खत्म। So that's the reason few more question I added so that you understand the concept of conjugate multiplication exactly क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, let's move for the next one। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी रेयर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो हम ले ही नहीं रहे, ये इससे भी एडवांस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़े क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, सो दैट जस्ट यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7A। यहाँ पे अभी हमें करना क्या है, मतलब व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया यू मस्ट नो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यू नो दैट कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अभी ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 क्या होना चाहिए, तो इट विल बी ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन लाइक दिस। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते वक्त आपको फिर से समझ में आ ही जाएगा, डोंट वरी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 7, बट स्टिल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो एक क्वेश्चन एल एच एस हमारे पास क्या है, वी हैव एल एच एस एज इक्वल्स टू कॉस रेज टू 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड ऑल दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साइन स्क्वायर, है ना, उसको मुझे साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन समझ लो कॉस रेज टू 4 तो नहीं हो सकता। ओके, जो फॉर्मूला कॉस स्क्वायर के लिए है वो मैं कॉस क्यूब के लिए या फिर कॉस रेज टू 4 के लिए यूज़ नहीं कर सकता। मुझे मेरे पास है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो मैं फॉर्मूला सिर्फ एक कॉस स्क्वायर के लिए यूज़ कर सकता हूँ जिसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेज टू 4 है, तो क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं, इसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर कर सकता हूँ या फिर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ। तो कॉमन निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, तो इसलिए आई एम टेकिंग कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकला इनटू ब्रैकेट, हियर रह गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ वहाँ मैं ये पुट कर देता हूँ जो है, तो दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 1 and 1 get cancelled, I am left with what, 1 minus sin square x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 and 1 गेट कैंसिल, तो व्हाट इज दैट, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हो क्या जाएगा, चलो देख लो, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस साइन रेज टू 4x एंड ये हो गया आपका आर एच एस। देखो ठीक से देखो, समझने की कोशिश करो, एज इट इज़ वी गॉट, है ना, गेटिंग इट, ईजी था, बहुत ईजी था, है ना। तो सेम वे बी भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो बाय टेकिंग सेक्स स्क्वायर थीटा कॉमन, ट्राई करो, आ गया अच्छी बात है, नहीं आया क्योंकि देखते, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ट्राई करो, ट्राई करने के बाद आपको नहीं आया तो मैं कल बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। कमेंट करना मत भूलना इन केस इफ़ यू डिड नॉट गेट दैट, ठीक है। मिला मतलब इफ़ यू गेट इट देन ऑल्सो प्लीज़ कमेंट इट सो दैट आई विल अंडरस्टैंड वेदर यू आर डूइंग इट और नो। ओके, मेनी ऑफ यू आई एम फाइंडिंग कि कोई कमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही सिर्फ देख रहे हो वीडियो, कॉपी कर रहे हो। when you solve and when you get it,
यू गेट अ काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट यस आई कैन डू इट, और ऐसे कुछ इन्वेंट किए जैसा एक फीलिंग आता है, तो दैट इज रियली गिविंग अ प्लेजर टू यू ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिक्स, एंड दैट्स व्हाई पीपल लाइक मैथमेटिक्स. देर आर सम पीपल आस्क मी क्वेश्चन कि सर हाउ डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ऐसे इतना क्या है मैथ्स में. तो ये मैं आपको समझा नहीं सकता जब तक आप लोग खुद से करते नहीं हैं. जब करने के बाद सॉल्व होता है ना, तब इतना मज़ा आता है ना, दैट फीलिंग इटसेल्फ, फॉर दैट फीलिंग इटसेल्फ आई एम रेडी टू डू एनीथिंग. तो ये फीलिंग आपको आना चाहिए. ओके, तो ये आएगा जब आप लोग खुद से ट्राई करोगे. चलो सी क्वेश्चन देखते हैं. सी क्वेश्चन में क्या है, कॉट रेज टू 4a माइनस 1 इज माई LHS, एंड आपको कोसेक में कन्वर्ट करना है. तो एक बात तो आपको पता चल गई कि कोसेक में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉट रेज टू 4 है, 4 नहीं कन्वर्ट हो सकता. हाँ, स्क्वायर हो तो हो सकता है. ये कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या देखो, कॉट, सॉरी, यहाँ कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं हम लोग. देखो, तो ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए मतलब कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर a प्लस 1 इंटू कॉट स्क्वायर a माइनस 1, इट वुड बी राइट. अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोसेक में कन्वर्ट करना है, तो उसको मैं कोसेक में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो कॉट स्क्वायर ए को कोसेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1. फॉर्मूला डिफिकल्ट है, तो वो फॉर्मूला मैंने लिख लिया. एंड ये भी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 1, बराबर ना. देख लो, ये रिप्लेस किया. अभी ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ कोसेक स्क्वायर ए. यहाँ पे क्या रह गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2. ठीक है ना. अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक रेज टू 4a माइनस 2 कोसेक स्क्वायर. तो कुछ नहीं किया, बस आई गॉट द आंसर, दैट्स इट. बहुत सिंपली आंसर मिल गया मुझे. ठीक है ना. होप यू अंडरस्टूड, होप यू आर क्लियर विद दिस. चलो, तो कैन वी ट्राई द अदर क्वेश्चन, कैन यू ऑल ट्राई द अदर क्वेश्चन. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, देखता हूँ इसमें, नहीं तो आप लोग खुद से सॉल्व करो. हाँ यस, मिस्टेक तो है. मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए प्लस साइन. ठीक है, अभी वो है प्लस साइन. डी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं. डी LHS इज साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा. अभी अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, स्क्वायर हो तभी हम लोग कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. तो हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस, तो ये कुछ इस प्रकार है. आई टेल यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाउ कैन यू राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन polynomial topic? We must have solved this. It is a plus b the whole square minus 2ab. ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं यूज़. बस यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, ए रेज टू 4 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर. तो ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, और इस फॉर्मूला में पुट करते हैं. ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 पता ही है मुझे, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. हो गया, काम खत्म. ठीक है, समझ में आ गया. चलो, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन खुद से करो, एफ मत करो, नहीं चाहिए. हाँ, आपको अगर इंटरेस्ट है तो करके देखो. क्यूब वाला आइडेंटिटी है, यू कैन फाइंड आउट योर वे टू गेट द आंसर डन. ओके, तो आपके हिसाब से आप खुद से ट्राई करके देखो. अगर आ गया तो मुझे सेंड करो, मैं वेरीफाई करके आपको मैं भेज देता हूँ. बट येस, दिस क्वेश्चन एटलीस्ट यू कैन कंप्लीट इट बिफोर हैंड. फाइन. सो ई क्वेश्चन यू कैन ट्राई योर सेल्फ, खुद से ट्राई करो, आ जाएगा आंसर. ठीक है, आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी. हाँ, माइनस है तो आपकी आइडेंटिटी अलग होगी, आइडेंटिटी को ठीक से यूज़ करो, साइन को पकड़ के. अलजेब्रा बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, यहाँ पे प्लस साइन है, रेक्टिफाई करो एंड गेट इट डन. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं. देखो, मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम लोग नहीं ले रहे. क्वेश्चन नंबर 9 कल ले रहे, बिकॉज HOTS क्वेश्चन है, सब एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे.
क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसलिए मैंने बस एक क्वेश्चन टाइम को मैच करने के लिए बस ले लिया, उसी कैटेगरी का था, इसलिए आई थॉट कि आई शुड गो फॉर इट। ठीक है, देखो ये जो है ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, आफ्टर दिस वी आर आफ्टर 9th क्वेश्चन वी हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे LHS RHS वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके है, लेकिन कुछ और भी उसमें एडेड है। तो यहाँ पे है क्या, मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ। ये गिवन है, इस गिवन का यूज करके हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसका यूज करके ये फाइंड करना है। चलो देखते हैं। तो वी हैव साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, और मुझे ये फाइंड करना है, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू 4x, ये फाइंड करना है। तो इसका यहाँ पे यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखो ठीक से, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं अगर उधर शिफ्ट किया तो आई गेट इट साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स? कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब क्या होता है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन के लिए कॉस स्क्वायर जो आता है वो क्या आता है, साइन एक्स आता है। तो इस कॉस स्क्वायर को मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली। लेकिन इसको मैं साइन एक्स नहीं ले सकता, इसको मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर करता हूँ। तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को फिर से साइन एक्स लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अभी मुझे बताओ ये आंसर क्या आता है। देखो यहाँ पर गिवन है, देख लो, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1, तो ये आ गया 1, फिनिश्ड। बहुत अलग है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इजंट इट, लेकिन इंटरेस्टिंग है ना। चलो एनीवे, विल स्टॉप आवर वर्क हियर, कंप्लीट इट, रिमेंबर द आइडेंटिटीज, रिमेंबर द फॉर्मूले एवरी डे। मैं बोल रहा हूँ, जितने जितने बार मैं बोलता हूँ ना, उतने उतने बार उस आइडेंटिटीज़ को, फॉर्मूले को रिवाइज करते जाओ। यहाँ पे आप लोग लेज़ी हो गए तो फिर कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा। आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं आएगा, मुझे पता ही है। तो जब हम लोग साथ होंगे, व्हेन वी आर टुगेदर, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन तब तक के लिए आप खुद से भी फॉर्मूले करो, तब तक के लिए अगर आप नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। ओके, अभी नहीं करोगे तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना एक भी नहीं आएगा। ओके, जितनी बार आप लोग वो फॉर्मूला का पेज सामने पकड़ के बैठोगे, उतने बार आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो सिंपल वे मैंने बताया कि कुछ नहीं, आइडेंटिटीज़ को बार बार लिखते जाओ, 2 बार लिखो एवरीडे, 3 बार लिखो, जैसे हम लोग टेबल्स लिखते थे व्हेन वी वर स्मॉल, सेम वे आइडेंटिटीज़ को बोल बोल के लिखते जाओ, सो दैट आपके आइडेंटिटीज़ क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जब भी आप लोग बैठोगे ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए, सबसे पहले थिंग 5-10 मिनट दो और इसको कंप्लीट करो। एक 10-15 दिनों में आपके सारे आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसे एकदम ईजीली। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू टुमारो विद द ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक एंड मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। कल हम लोग HOTS करने वाले हैं। बाय बाय।